Students, hope you all are fine. Today we have to start question number 7, exercise 6.5. Question is find the both the maximum and minimum value of the function f of x equal to 3x power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 where x belonging to closed interval 0 3. Now f dash x equal to 4 into 3 is 12x cube minus 8 into 3 is 24x square plus 24x minus 48x. X differentiation is 1 plus 25 constant term differentiation is 0. Now can I take 12 common from here? 12 x cube minus 2x square, 12 into 2 24 plus 12 into 2 24x minus 12 into 4 is 48. Now can I write this x cube plus 2x minus 2x square as x square into x minus 2. X square into x is x cube minus 2 into x is 2x square plus, can I write this as 2 into x minus 2? 2 into x is 2x minus 2 into 2 is 4. Now we take x square plus 2 from here and x minus 2 common here. Now f dash x equal to 0. F dash x equal to 0, it means 12 into x square plus x minus 2 equal to 0. Therefore x square into x minus 2 equal to 0 by 12 is nothing but 0. Now either this x square plus 2 equal to 0 or x minus 2 equal to 0, x square equal to minus 2 or x equal to 2. So x square equal to plus minus root 2 or x equal to 2. दिस इज़ इमेजनरी वैल्यू, माइनस रूट 2 मीन्स इमेजनरी वैल्यू हम नहीं लेंगे. जो x की वैल्यू हमारा क्लोज इंटरवल था 0 और 3, x वैल्यू आ गई 2, इट मीन्स ये वैल्यू जो है इंटरवल में लाई कर रही है. दिस इज़ वैलिड वैल्यू. नाउ x इक्वल टू 2. अब तीन वैल्यूज़ हमारी कौन सी आ गई थी? 0 और 3 और एक x की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की 2. नाउ फंक्शन अब चेक करेंगे. व्हेन x इक्वल टू 0, f ऑफ x क्या होगा? व्हेन x इक्वल टू 0 तो f ऑफ 0 क्या होगा? व्हेन x इक्वल टू 0 तो f ऑफ 0 होगा. यस, व्हेन x इक्वल टू 0 f ऑफ 0, x जब 0 डालेंगे और वैल्यू 0 होंगी तो क्या होगा? f ऑफ 0 इक्वल टू 25. When x equal to 0 तो f of 0 equal to 20. When x equal to 2, f of 2 equal to 3 into x raised to power 4, 2 raised to power 4 minus 8 into x cube, 2 cube plus 12 x square, 2 square minus 48 x value is 2 plus 25. 3 into 2 power 4, 2 power 4 is what? 16, 16 into 3 is 48 minus 8, 2 power 3 is 8, 8 into 8 is 64 plus 12, 2 power 2 is 2 square 4, 4 into 12 is 48 minus 48 to the 96 plus 25. Now adding this and 25, you will get 121, and minus 64 minus 96 is minus 60. 121 minus 60 is minus 39. Now f of 3, when x equal to 3, f of 3 equal to 3 into 3 raised to power 4 minus 8 into 3 raised to power 3 plus 12 into 3 square minus 48 into 3 plus 25. 3 raised to power 4, 3 raised to power 4 is 20, 81 minus 8, 3 cube 27 plus 12, 3 square 9 minus 48 into 3 is 144 plus 25. 81 into 3 is 243, 27 into 8 is 216, 12 into 9 108 minus 144 plus 25. When you add this and this, you will get 376 on minus 216 minus 144 360, it becomes 16. So f of 3 equal to 16. So maximum value क्या थी? 25 जो f of 0 पे थी, तो f therefore 25 is the maximum value. एंड मिनिमम वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? माइनस 39 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. दस वी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की?
एफ एफ एक्स आपको गिवन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स and cos x differentiation is minus sin x. Put f dash x equal to 0, cos x minus sin x equal to 0. So minus sin x equal to minus cos x, minus minus cancel, sin x by cos x equal to 1. Sin x by cos x, tan x equal to 1. tan x 1 किस पे होगा? tan 5. So tan x equal to 1 को लिख सकते हैं हम 10 पाई बाई 4. 10 45 पे 1 होता है. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x क्या होगा? 10 पाई बाई 4 होगा, यानी x पाई बाई 4 होगा. 10x इक्वल टू 10 पाई बाई 4 इम्प्लाइज x इक्वल टू पाई 4. 10 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. 10x इक्वल टू 10 पाई प्लस थीटा. 10 पाई प्लस थीटा, और 10 पाई प्लस थीटा क्या है आपका, यानी x पाई बाई 4. 10 4 पाई बाई प्लस पाई 5 पाई बाई 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 4 5 पाई बाई 4. सो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स क्या निकाला था हमने? फंक्शन था हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. एफ डैश एक्स निकाला था हमने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना. तो डबल डैश यहाँ से क्या निकल जाएगा? कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी? माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स की हो जाएगी कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स. साइन एक्स की कॉस होगी माइनस पहले से ना. एफ डबल डैश पाई बाई 4, एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 डालेंगे और 5 पाई बाई 4 डालेंगे. माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, साइन 45 1/2 कॉस 45 1/2. So it becomes minus 1/2 minus 1/2 रूट 2 कॉमन, -1 minus 2/2 नेगेटिव है, लेस देन 0 होगा. हमने लोकल मैक्सिमम में पढ़ा था, अगर लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है. एक्स इक्वल पाई बाई 4 इज़ अ मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा. सो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई, क्योंकि लेस देन 0 पे मैक्सिमम होता है. नाउ यस, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी? मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4. साइन पाई बाई 4 45 1/2, कॉस 45 1/2, 1/2 प्लस 1/2 2/√2. क्या मैं लिख सकता हूँ 2/√2 को? 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 मीन्स √2 का स्केयर कैंसिल, सिर्फ √2 बचेगा. तो कैन आई राइट 2 एज √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2. √2 कैंसिल, ओनली आंसर इज √2. सो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू √2. देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज √2. Now let's move to next question. Question number 12. Find the maximum and minimum value of the function. These are very very important questions. Keep in mind all three questions are very important. Find the maximum minimum value of the x plus sin 2x on interval 0 to 2 pi. Now function f of x equal to x plus sin 2x, f dash x equal to x डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस साइन 2x इज 2 cos 2x. साइन 2x की cos 2x फंक्शन की दोबारा से 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगी तो x की 1 हो जाएगी 2 cos 2x. पुट f डैश x इक्वल टू 0, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू -1, cos 2x इक्वल टू -1/2. cos नेगेटिव का -1/2 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 किस पे होता है? cos 60 पे 1/2 होता है. cos 2x इक्वल टू माइनस cos π/3. और कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है. cos 2x इक्वल टू cos पाई माइनस π/3 पाई माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos पाई माइनस π/3 3 पाई माइनस पाई 2 π/3. cos 2x इक्वल टू 2π/3. सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने देखा ये cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा यानी थीटा क्या है? π/3 2 π/3. अब हमने एक 11th में फार्मूला पढ़ा था, अगर cos x cos y के इक्वल होगा इम्प्लाइज x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस. तो ये फार्मूला आपको लर्न करना है. cos x अगर cos y के इक्वल होगा तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होगा.
नाउ एक्स क्या है यहाँ पे, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई क्या है 2 पाई/3। सो x इक्वल टू डिवाइड बाई 2 करेंगे 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/3 वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर z। जब n 0 होगा, when n इक्वल टू 0, तब x क्या होगा, इंटरवल आपका 0 से 2 पाई है। when n इक्वल टू 0 x इक्वल टू पाई/3, x इक्वल टू पाई/3। जब हमका n 0 होगा x क्या होगा पाई/3। जब n 1 होगा, ये था आपका x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/3, ऐसा ही था ना ये। when n इक्वल टू 0, जब ये n 0 पाई/3। when n इक्वल टू 1, तो x क्या होगा, when n इक्वल टू 1 x इक्वल टू पाई प्लस पाई/3, पाई प्लस पाई/3, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई/3 और पाई माइनस पाई/3, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। when x इक्वल टू 2, जब x कितना होगा 2 होगा, तो 3 to 6 पाई प्लस पाई 7 पाई/3, 7 पाई/3, 7 पाई/3। पाई/3 कितना है 7 इंटू 60, पाई/3 60 होता है, 60 इंटू 7 420, 0 2 पाई के बीच में वैल्यू होंगी, तो ये 7 पाई/3 हम नहीं लिख सकते। फिर n इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई/3 करेंगे, 2 पाई माइनस पाई/3, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/3, 5 पाई/3, पाई/3 कितना होता है 65 ज़ा 300, तो 5 पाई/3 x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहीं तक आएगी, 7 पाई/3 नहीं आएगी क्योंकि 360 से ज़्यादा हो जाएगी। तो x की ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ना एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। अब x 0 डालेंगे, 0 प्लस साइन 0 0 होता है, तो f0 0 हो गया। फिर x की वैल्यू हम क्या डालेंगे 2 पाई, व्हेन x इक्वल टू ये इंटरवल 2 पाई, तो x की जगह 2 पाई प्लस साइन 2 पाई। साइन 2 पाई पे भी क्या होता है साइन 0, साइन 0 0 होता है, तो 360 भी 0 ही होगा, 2 पाई, एफ ऑफ 2 पाई 2 पाई होगा। तो एफ ऑफ पाई/3 x प्लस साइन x है ना, तो पाई/3 प्लस साइन 2x है, तो 2 पाई/3, साइन 2 पाई/3, 2 पाई/3 यानी 60, 16 120, तो साइन 120 कितना होगा 180 माइनस 60, साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2। एफ 2 पाई/3 डालेंगे, तो x की जगह 2 पाई/3, तो साइन 2 इंटू 2 पाई/3, 2x है ना, साइन 2x, x क्या है 2 पाई/3, 4 पाई/3, 2 पाई/3 माइनस साइन 4 इंटू पाई/3, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई/3 यानी 4 इंटू 60 240, 240 कितना होगा 180 प्लस 60, तो 180 प्लस 60 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो -3 पाई/2। नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज 4 पाई/3, 4 पाई/3 प्लस साइन 2 साइन 2x है ना, x 4 पाई/3, तो 8 पाई/3, और पाई/3 कितना होता है 60, 60 इंटू 8 480, 480 4 पाई/3 प्लस साइन 8 पाई/3, 480 360, तो 480 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं, तो पाई/3 पाई/2, 5 पाई/3, 5 पाई/3 प्लस साइन 2x 5 इंटू 2 10 पाई/3, पाई/3 मीन 60, 16 10 600, 600 कुछ कहाँ पे होगा